Welcome student into chapter 7. After finishing the problem definition chapter, we have to start with the qualitative research tools. So qualitative research tools are helping aid for completion of research. After studying this complete chapter, we should able to, so these are the objectives of our chapter. The student must be able to, after learning this chapter, student must be able to list and understand the difference between qualitative research and quantitative research. ये हमारे दो मेजर रहेंगे, आपको पता होनी चाहिए. Then role of qualitative research in exploratory research design. Then describe the basic qualitative research orientation types भी आप उसे बोल सकते हो. Then what is focus group interview and how to prepare its outline. Then recognize technological advances in qualitative research approaches. The next objective is recognize common qualitative research tools जो हम लोग यूज कर सकते हैं या फिर आप लोग अपने पेपर्स में यूज करोगे, and know the advantage and limitations of their use. Again, we must also know after this chapter that risk associated with acting only on exploratory research. सिर्फ एक ही तरीके का रिसर्च अगर हम करेंगे तो उसका रिस्क क्या है, उसमें एक्यूरेसी पे क्या रिस्क है रिजल्ट का, वो हम लोगों को देखना है. लेट अस स्टार्ट. There is an example. Chemists sometimes use the term qualitative analysis to mean the research that determine what some compound, chemical compound is made up of. मतलब उसमें क्या चीजें डाली गई है वो ढूंढने के लिए वो क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हैं. In other words, the focus is on inner meaning on chemical. It is qualities. केमिकल के लिए मीनिंग क्या रहता है, उसका हर एक केमिकल का अपना अपना कुछ क्वालिटीज रहता है. As the word implies quality, qualitative research is interested more in qualities than numbers, quantities. Therefore, qualitative research is not about applying specific number to measure variable or using statistical procedure to numerically specify the relationship and strength. And that's why our focus is on that कि type of research, because हमारा problem statement होने के बाद हम लोगों को पता चलेगा कि whether we are going for qualitative research or quantitative. So quantitative is related to numbers, qualitative is related to quality or the what that particular value variable का meaning is there. What is qualitative research, यहाँ पे याद रखना चाहिए या फिर एग्जाम्पल से आप लोगों को ज्यादा क्लियर होगा. Qualitative business research or qualitative research is the research that addresses the business objective through techniques that allow the research to provide elaborate interpretation of market phenomena without depending on the numbers or numerical measurement. वो मार्केट को ऑब्जर्व करेंगे और उसको एलॉबरेट इंटरप्रिटेशन अप्लाई करेंगे रिसर्च क्वालिटी के थ्रू, और उसके ऊपर से मार्केट में क्या ट्रेंडिंग है, कौन सा नया प्रोडक्ट चलना चाहिए, किस तरीके की लोगों को जरूरत है, वो फाइंड आउट करेंगे. बट वो लोगों को मतलब 1000 कस्टमर का इंटरव्यू लिया है इस तरीके के न्यूमरिक व्यू पॉइंट पे नहीं रहेंगे, जस्ट ऑब्जर्वेशन बेस पे रहेंगे. सो इट्स फोकस इज ऑन डिस्कवरिंग, उनका मेन काम है ट्रू इनर मीनिंग, ना कि कितने लोगों को आप लोगों ने पूछा अबाउट देयर व्यूज. वो खुद से ढूंढने का कोशिश करेंगे कि ट्रू इनर मीनिंग क्या, न्यू इंसाइट है उन चीजों का जो मार्केट में जरूरी है. क्वालिटेटिव रिसर्च इज वेरी वाइडली अप्लाइड इन प्रैक्टिस. मोस्ट ऑफ द मतलब मेजॉरिटी इनका रिसर्चर काफी ज्यादा यूज करते हैं अप्लाइड रिसर्च में इसको. There are many research firms that specialize in qualitative research. Already here, we are not talking about them. Qualitative research is less structured than most quantitative approach. Quantitative approach में जब डेटा कलेक्ट होता है तो उसको एनालिसिस करना है, कौन सी क्वालिटी टेस्टिंग करना है, ये ऑलरेडी सारी चीजें फिक्स रहती है कि उसके रिजल्ट कैसे ऑब्टेन होंगे. क्वालिटेटिव रिसर्च में ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, बिकॉज वो सारा फाइंडिंग्स के ऊपर है, और रिसर्चर का इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है क्वालिटेटिव रिसर्च में फॉर इंटरप्रिटिंग द ऑब्जर्वेशंस और डेटा ही कलेक्ट्स. बिकॉज उसका डेटा कोई नंबर स्पेसिफिक नहीं रहता है, उसका डेटा उसके इंटेंशन और उसके मेथोडोलॉजी के हिसाब से या ऑब्जर्वेशन के हिसाब से लिया जाता है. इट डज नॉट रिलाई ऑन द सेल्फ रिस्पॉन्स क्वेश्चनरीज. क्वालिटेटिव रिसर्च क्वेश्चनरीज पे डिपेंड नहीं रहता है, मतलब सिर्फ लेते हैं वो क्वेश्चनरीज, बट उसमें नहीं लेता है, फिक्स नंबर नहीं रहता है, फिक्स सैंपल नहीं रहता है, वो लेते हैं रिस्पॉन्स क्वेश्चनरीज, बट कंप्लीटली उनके रिजल्ट या जो आउटकम है वो क्वेश्चनरी पे डिपेंड नहीं रहता है.
Instead, it is more research dependent, researcher dependent. रिसर्चर की थिंकिंग, माइंड, ऑब्लिगेशंस, उसका इनर फीलिंग, उसका एटीट्यूड उस पे रहता है. इन दैट द रिसर्चर मस्ट एक्सट्रैक्ट द मीनिंग फ्रॉम अनस्ट्रक्चर्ड रिस्पॉन्स. वो टेक्स्ट पढ़ता है, ना कि कोई क्वेश्चनरी पढ़ता है. वो बुक्स पढ़ता है, वो पेपर्स पढ़ता है, रिसर्च पेपर पढ़ता है, और उनके हिसाब से अपना एक कंक्लूजन डिराइव करता है. सच एज टेक्स्ट फ्रॉम रिकॉर्डेड इंटरव्यू. ओके, वो रिकॉर्डेड इंटरव्यू को ऑब्जर्व करता है. A collage representing the meaning, a collage representing the meaning of some experience pictures, such as skateboarding. The researcher interprets the data, extracts its meaning from the pictures, from the text, from the videos, and converts them into information in a scientific way. And from that, he drives its conclusion, his or her conclusion. What is the uses of qualitative research? Mechanics can't use hammer to fix everything is broken. आप लोग हर चीज हथौड़े से ठीक नहीं कर सकते हो. Instead, mechanic has toolbox from which tool is matched to solve the problem he has to decide. Business research is the same. The researcher has many tools available, and the research design should try to match the best tool or to the research objective. और इसी के लिए हम लोग ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, ताकि आप लोगों को सारी चीजें अवेयर हो जाए. Also, just as mechanic, it is probably not an expert with the every tool. ऐसा भी हो सकता है उसके पास टूल बॉक्स तो सारे हैं, लेकिन सारे टूल्स उसको नहीं आते. Each research usually has special expertise. उसको सारा एक्सपर्टाइज नहीं रहेगा, लेकिन कुछ एरिया में उसकी एक्सपर्टाइज होगी with a small number of tools. Not every research has expertise with the tools that would comprise the qualitative research. So what is there? अगर वो आपके रिसर्च में वही टूल यूज करना है, तो आप लोगों को उस टूल को लर्न करना पड़ेगा, एंड देन यू हैव टू कैरी आउट द रिसर्च if the tool is specifically matched for that qualitative research. We are talking about qualitative research in first segment. Generally, the less specific research objective, the more likely the qualitative research tool to be appropriate. रिसर्च ऑब्जेक्टिव लेस स्पेसिफिक रहेंगे तो फिर आप लोगों को क्वालिटेटिव रिसर्च करना पड़ेगा. ऑब्जेक्टिव स्पेसिफिक रहेंगे तो फिर नंबर से आप लोग क्वांटिटेटिव रिसर्च से आउटपुट ले सकते हो. Also, when the emphasis is on deeper understanding of motivation or on developing novel concepts, qualitative research is very appropriate. The following list represent common situations that often call for qualitative research. First, वह कब करना चाहिए, क्वालिटेटिव रिसर्च कब करना चाहिए, ये ज़्यादा आप लोगों को ध्यान से सुनना चाहिए, अंडरस्टैंड करना चाहिए. आई विल हेल्प यू टू मेक यू अंडरस्टैंड. Still, if you have your any question related to this thing, if you are not understand any example or concept, please put your question in chat box. I am observing the entire screen. So when to conduct the qualitative research, some of the situations, some of common situation बताया, हजारों situation हो सकती हैं. First, when it is difficult to develop specific and actionable problem statement, जब हमको clear नहीं है कि exactly किस वजह से problem हो गया, और रिसर्च ऑब्जेक्टिव ड्राफ्ट करने के लिए डिफिकल्टी हो रही. फॉर एग्जाम्पल, इफ आफ्टर सेवरल इंटरव्यू विद द रिसर्च क्लाइंट, जो मैनेजर है, जो कंपनी जिसके लिए हम रिसर्च कर रहे हैं, उनके साथ में बहुत सारे इंटरव्यू होने के बाद भी रिसर्चर को समझ में नहीं आ रहा है कि एग्जैक्टली क्या मेजर करना है. ओके, देन क्वालिटेटिव रिसर्च अप्रोच में हेल्प विद द प्रॉब्लम. Qualitative research is often useful to gain further insight and crystallize the research problem. Second, when the research objective is to develop an understanding of some phenomena in great detail in much depth, तो रिजल्ट उन लोगों का प्रॉब्लम का अंडरस्टैंडिंग है, सॉल्यूशन का अंडरस्टैंडिंग है, ना कि इम्प्लीमेंटेशन, तब आपको क्वालिटेटिव रिसर्च करना पड़ेगा. Qualitative research tools are aimed at discovering the primary themes indicating human motivation. जहाँ पे ज़्यादा ह्यूमन के बिहेवियरल एस्पेक्ट रहेंगे, वो अगर आपको फाइंड आउट करना है तो क्वालिटेटिव रिसर्च करना पड़ेगा. बिकॉज ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन मोटिवेशन एंड साइकोलॉजिकल कंडीशंस आर नॉट मेजरेबल. वो क्वांटिफाइबल नहीं है, कौन कब किस तरीके से बिहेव करेगा. एंड द डॉक्यूमेंटेशन ऑफ एक्टिविटीज इज यूजुअली वेरी कंप्लीट, सो दैट विल हेल्प अस. Often qualitative research provide richer information than quantitative information, because these are only numbers that doesn't exact specify the willingness of the person. Before going to third one,
आई विल जस्ट गिव यू एग्जाम्पल. फॉर एग्जाम्पल, किसी क्वेश्चनरी में आपको पूछा है वेदर यू लाइक योर कॉलेज, और आपको आंसर देना है यस और नो. तो कुछ बच्चे यस लिखेंगे, कुछ बच्चे नो लिखेंगे. बट दैट डजंट क्लैरिफाई द इनर डिटेल. नो कहा है तो क्यों नो कहा है, और यस कहा है तो क्यों यस कहा है, वो नहीं आएगा. आपको ये पता चलेगा एक बच्चे की रिस्पॉन्स से, आइदर एक बच्चे को कॉलेज अच्छा लगता है या कॉलेज बुरा लगता है, ये उस रिजल्ट से क्लैरिफाई हो जाएगा. लेकिन क्यों लगता है दोनों कंडीशन में वो नहीं पता चलेगा. प्लस उसको शायद उसके रीजंस भी हो सकते हैं यस और नो बोलने के लिए. कैसे? यस बोलने के लिए हो सकता है कि उसको शायद टीचर ने इंटरनल्स में हमेशा ज्यादा मार्क्स दिए, इसलिए शायद उसको पसंद है, मतलब बायस्ड उसका आंसर होगा, इसलिए उसने बोला है मुझे कॉलेज अच्छा लगता है. या फिर उसको टीचर ने एब्सेंटी लेने के लिए हाँ बोल दिया, यस तुम घर पे रहो, हम लोग तुमको अलाउ कर देंगे एग्जाम के लिए, उसको ही ले शायद उसको कॉलेज अच्छा लगता है. ये भी हो सकता है, बायस है. या फिर नो, जिसने लिखा है कि वाई आई डोंट लाइक कॉलेज, उसने इसलिए नो लिखा है कि उसको टीचर ने डांट दिया. ओके, उसका एग्जाम्पल बना के क्लास में बना बता दिया, या फिर उसको कुछ रूड लैंग्वेज में टीचर ने उससे बात किया, तो उसको पूरे क्लास में बाकी सारे टीचर, बाकी सारा एनवायरनमेंट, पूरे पॉइंट्स वो ध्यान में नहीं रखा है, लेकिन किसी एक टीचर ने उसको डांट दिया लेक्चर में, इसलिए वो बोलता है कॉलेज इज नॉट गुड. ये भी हो सकता है, वो भी बायस रिजल्ट है. सो क्वांटिटेटिव के अपने कुछ एडवांटेजेस है, लेकिन डिसएडवांटेज भी है, जैसे ये जो मैंने आप लोगों को अभी केस स्टडी बताया, एग्जांपल बताया, ऐसा हो सकता है. तो अगर आपको रियल इनर साइड और डिटेल चाहिए तो क्वालिटेटिव रिसर्च करना चाहिए. दैट डजंट मीन्स कि क्वालिटेटिव रिसर्च इज बेस्ट एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च इज रॉन्ग. नहीं, जहाँ पे जरूरत है जिस सिचुएशन में, वहां पे क्वांटिटेटिव ही यूज करना पड़ेगा, और जहाँ पे क्वालिटेटिव चाहिए वहां पे क्वालिटेटिव ही करना पड़ेगा. सो दैट टोटली हम लोग लर्न करेंगे, और वही इसीलिए हम लोग एग्जाम्पल देख रहे हैं कि कब क्वालिटेटिव करना है, कब क्वांटिटेटिव करना है. होपफुली डू यू अंडरस्टूड द एग्जाम्पल. When the research objective is to learn how phenomena occurs in natural setting, or to learn how to express some concept in colloquial terms. For example, how do consumer actually use the product? So इसमें the way they are handling the product while they are using, or exactly how does accounting department process invoice, इसमें steps involved है कि किस तरीके से वो इनवॉइस करते, प्रोसेस करते, कोई एक दो स्टेप्स में डिफरेंस रहेगा. सो दीज आर गोइंग टू बी कंसेप्चुअल थिंग्स. उनका द वे ऑफ वर्किंग, दैट इज नॉट मेजरेबल. ओके, कितने लोग प्रोसेस करते हैं और कितने लोग प्रोडक्ट यूज करते हैं नंबर्स में आएगा, बट किस तरीके से यूज करते हैं, किस तरीके से प्रोसेस करते हैं, वो नंबरिंग में नहीं आता है. while survey can probably ask many useful questions, observing a product in use or watching the invoice process will usually more insightful. अगर आप क्वेश्चनरीज भेज देते हो तो आप प्रोसेस करते हो कि यस और नो बता देंगे, किस तरीके से करते हो, अच्छा या बुरा, तो वो अच्छा ही लिखेंगे. ओके, हाउ डू यूज प्रोडक्ट, yes they are saying we are using the product, you use the product in proper way, they are saying yes. बट जब आप उनको एक्चुअली ऑब्जर्व करेंगे कि कैसे प्रोसेस इनवाइस होता है, कैसे यूजर प्रोडक्ट का हैंडल करता है, तब आप लोगों को रियल आंसर मिलेगा. ओके, सो qualitative research produces many product and processes improvement ideas by observation. So not only observation, but there are so many other ideas. When some behavior the researcher is studying in particularly context dependent, meaning the reason something is liked or some behavior is performed depend on very much on particular situation surrounding the event. जैसे हम लोगों ने अभी कुछ डिस्कशन किया था एग्जाम्पल पे. So researcher work is to understand why the vans are like more probably too difficult to determine correctly outside the skating environment. यहाँ पे एक एग्जाम्पल बताया कि जहाँ पे भी स्केट का वो पर्टिकुलर स्केटिंग होता है, उसके ग्राउंड के आउटसाइड में वैन्स को खड़ा करने के लिए, मतलब कार्स को खड़ा करने के लिए जगह होना चाहिए. सो वो एक जनरल स्टेटमेंट है, जनरल थिंकिंग है, बट वो भी उसका एक साइंटिफिक रीजन आ सकता है बाय क्वालिटेटिव रिसर्च. हम लोग एग्जाम्पल को बाद में डिस्कस करेंगे. When fresh approach to study some problem is needed, this is particularly the case when quantitative research has yielded less than satisfying result. Okay, जब आप लोगों को ऐसा फ्रेश अप्रोच चाहिए
जिसमें आप लोगों को ऑलरेडी डेटा अवेलेबल नहीं है, इस केस में क्वांटिटेटिव रिसर्च कर को कम मिलता है, क्योंकि अगर फ्रेश स्टार्ट कर रहे हो तो उसके लिए डेटा ही अवेलेबल नहीं रहेगा, लोग ही अवेलेबल नहीं रहेंगे, तो फिर आप किससे इंफॉर्मेशन लोगे? यहाँ पे नंबर्स आपका कुछ काम में नहीं आएगा। तो ऐसी सिचुएशन में जैसे नया प्रोडक्ट लॉन्च है, ओके, या फिर किसी का नया पहली बार किसी को अलग तरीके का प्रॉब्लम आया है, तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव रिसर्च काम में नहीं आएगा, क्वालिटेटिव रिसर्च यूज करना पड़ेगा। Qualitative tools can yield unique insight, many of which may lead organization in new direction. Each of these describes the scenario the way that may require an exploratory orientation. We will talk about exploratory research. पिछले एक चैप्टर में भी हमने दिखाया था कि जहाँ पे इंसाइट और ज़्यादा क्लैरिफिकेशन लगता है, दीज आर कम्स अंडर द एक्सप्लोटरी रिसर्च। ओके, जहाँ पे भी एम्बिग्यूटी सिचुएशन की रहती है, न्यू इंसाइट इज नीडेड, एक्सप्लोटरी रिसर्च विद क्वालिटेटिव अप्रोच करना चाहिए। We indicated that exploratory research approaches are sometimes needed to just reach the appropriate problem statement. कभी कभी तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट फाइंड आउट करने के लिए भी आपको एक्सप्लोर करनी पड़ेंगी चीजें, क्योंकि क्लाइंट से बात करके अगर रिसर्चर को नहीं पता चल रहा है तो उसको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ताकि एग्जैक्ट ऑब्जेक्टिव पता चले, प्रॉब्लम डेफिनेशन डिसाइड हो जाए। While equating qualitative research with exploratory research is an oversimplification, the application of qualitative tools can help to clear up ambiguity and provide innovative ideas. Let us talk about qualitative versus quantitative research. The truth is that qualitative research can accomplish research object that quantitative research cannot. क्लियर चीज ये है कि क्वालिटेटिव में जितना क्लियर चीजें पता चल सकते उतना क्वालिटेटिव में नहीं। Similarly, truthful, but no more so, quantitative research can accomplish the objective that qualitative research cannot. Okay, so मोर इनसाइट मोर ट्रूथफुलनेस क्वालिटेटिव से मिल सकता है, लेकिन जो क्वांटिटेटिव से पता चलेगा वो क्वालिटेटिव से भी नहीं पता चलता है। द की टू सक्सेसफुल यूजिंग आइदर इज टू मैच द राइट अप्रोच टू राइट रिसर्च कंटेक्स्ट। कौन सा यूज करना है, ये राइट अप्रोच आपको लेना पड़ेगा। दैट टोटली डिपेंड्स ऑन द रिसर्च कंटेक्स्ट, रिसर्च का ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रॉब्लम क्या है। मेनी गुड रिसर्च प्रोजेक्ट कंबाइन बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च, ताकि कोई स्कोप ही नहीं रहे एम्बिग्यूटी का। बट ऑब्वियसली दोनों टाइप के रिसर्च करने तो एफर्ट ज़्यादा लगेंगे, पैसा ज़्यादा लगेगा, टाइम ज़्यादा लगेगा, लोग ज़्यादा लगेंगे। फॉर इंस्टेंस, developing a valid survey measures require first deep understanding of the concept to be measured and description of the way these ideas are expressed in the everyday language. So पहले आपको क्वालिटेटिव रिसर्च करना पड़ेगा बिफोर मेकिंग द क्वेश्चनरी, कि इन लोग कैसे काम करते हैं, उनका परसेप्शन क्या है, उनका बिहेवियरल एटीट्यूड क्या है, उनका एज ग्रुप क्या है, उनका सोशियोलॉजिकल बैकग्राउंड क्या है, उनका इकोनॉमिकल बैकग्राउंड क्या है। ये सारी चीज़ें आपको क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव रिसर्च से या फिर रिसर्च टैक्टिक्स से पहले पता करनी पड़ेंगी। फिर आपको क्वांटिटेटिव रिसर्च का सर्वे बनाना पड़ेगा, क्वेश्चनरीज बनानी पड़ेंगी। बोथ ऑफ दिस टास्क best suited for qualitative research. However, validating the measure formally to make sure it can be reliably capture the intended concept will likely to require quantitative research. फिर बाद में आप लोगों को क्वेश्चनरी बनाकर उसके लोगों से इंफॉर्मेशन लेनी पड़ेगी। Also, qualitative research may be needed to separate symptoms from the problem, and then quantitative research can follow up the test relationship between among the variables, whether they actually have some impact on each other or not. The research snapshot, okay, that we will talk next. Quantitative business research can be defined as a business research that addresses the research objective through empirical assessment, data assessment, empirical old data या new data जो भी जमा करेंगे larger samples के साथ, that involves the numerical measurement and analysis approach, जहाँ पे statistics भी use होता है। Qualitative research is more apt to stand on its own in the sense that it requires less interpretation. उसमें interpretation करने की जरूरत नहीं, क्योंकि डेटा एनालिसिस स्टैटिस्टिक्स अप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आएंगे वो फैक्चुअल रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, quantitative research is quite appropriate. Quantitative research is quite appropriate when research objective involves managerial action standard. For example, a salad dressing company considered changing its recipe. एक कंपनी है जो सलाद बनाती है, वो अपना
रेसिपी चेंज करना चाहती है तो न्यू रेसिपी वाज टेस्टेड विद सैंपल ऑफ कंज्यूमर्स, कुछ लोगों को दिया जाता है। ईच कंज्यूमर रेटेड द प्रोडक्ट यूजिंग न्यूमेरिक स्केल, वो 1 to 5 में बता देता है कि 1 मतलब सबसे बुरा, 5 मीन्स वो अपने हिसाब से स्केल रखेंगे। मैनेजमेंट एस्टेब्लिश अ रूल दैट मेजॉरिटी ऑफ कंज्यूमर रेटिंग द न्यू प्रोडक्ट हायर देन द ओल्ड प्रोडक्ट वुड हैव टू बी एस्टेब्लिश विद 90% कॉन्फिडेंस बिफोर रिप्लेसिंग द ओल्ड फॉर्मूला। यहाँ पे फिर कुछ न्यूमेरिक बातें बता दी है कि मैनेजमेंट ने ये डिसाइड किया कि इसे 50-50% लोग बोलते हैं इसलिए वो रेसिपी चेंज करेंगे, नहीं। अगर 90% लोग अगर बोलते हैं कि वो प्रोडक्ट का, नए प्रोडक्ट का टेस्ट अच्छा है और पुराने का अच्छा नहीं है, तभी वो चेंज करेंगे। A project like this can involve both quantitative measurement in the form of numeric rating scale and qualitative analysis in the form of applied statistical procedure. Sorry, थोड़ा सा अलग है। ओके, सो यहाँ पे न्यूमेरिक रेटिंग स्केल में आप लोगों को क्वांटिटेटिव चाहिए प्लस क्वांटिटेटिव एनालिसिस इन द फॉर्म ऑफ अप्लाइड स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर, मतलब आप मेजरमेंट भी करना पड़ेगा और स्टैटिस्टिक्स भी यूज करना पड़ेगा। सो लेट अस से वही जो हम लोगों ने पढ़ा है अभी 2-3 स्लाइड्स में। ओके, डिफरेंशिएट बिटवीन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मेथड्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहले हम लोग रिसर्च एस्पेक्ट देख लेते हैं, फिर क्वालिटेटिव एस्पेक्ट में क्या होगा, क्वांटिटेटिव में क्या होगा। ओके, सो रिसर्च एस्पेक्ट है कि कॉमन पर्पस रहेगा, अप्रोच कैसे रहेगा, डेटा कलेक्शन अप्रोच कैसे रहेगा, रिसर्चर इंडिपेंडेंस कहाँ पे रहेगा, सैंपल्स कैसे रहेंगे, मोस्ट ऑफन यूज क्या रहता है। सो क्वालिटेटिव रिसर्च में क्या होता है, क्वालिटेटिव रिसर्च डिस्कवर आइडियाज यूज्ड इन एक्सप्लोटरी रिसर्च विद जनरल रिसर्च ऑब्जेक्टिव, व्हाइल with this common purpose the quantitative research, whatever hypothesis is stated, they will test the hypothesis और स्पेसिफिक रिसर्च क्वेश्चन के साथ वो रिजल्ट आंसर उनका फैक्चुअली यस और नो में आ सकता है। अप्रोच ऑफ रिसर्च कैसे हैं, क्वालिटेटिव रिसर्च ऑब्जर्व और इंटरप्रेट करता है, वाइल क्वांटिटेटिव रिसर्च मेजर एंड टेस्ट करता है। क्वालिटेटिव रिसर्च अनस्ट्रक्चर्ड रहता है, फ्री फॉर्म रहता है डेटा कलेक्शन के लिए, उनको जरूरी नहीं कि वो क्वेश्चनरी यूज करे। लेकिन क्वांटिटेटिव रिसर्च में ये मैंडेटरी है, स्ट्रक्चर्ड डेटा रिस्पांस डिफरेंट कैटेगरीज में वो यूजर से या फिर लोगों से या कस्टमर से या कंज्यूमर से या जिन लोगों पे रिसर्च कर रहे हैं उनसे कलेक्ट करें। रिसर्चर का इंडिपेंडेंस, क्वालिटेटिव रिसर्चर में रिसर्चर इज इंटीमेटली इन्वॉल्व, सारा कुछ उसी पे डिपेंड है। रिजल्ट्स आर सब्जेक्टिव डिपेंडिंग ऑन द हिज क्वालिटी ऑफ रिसर्च। क्वांटिटेटिव में रिसर्चर इज अनइन्वॉल्व एज ऑब्जर्वर, उसको डेटा कलेक्ट करना है, उसके हिसाब से रिजल्ट ऑब्जेक्टिवली प्रेजेंट करना है, अपने खुद के इंटरप्रिटेशन नहीं डालना है। तो अगर इंडिपेंडेंस देखोगे तो क्वालिटेटिव में ज़्यादा है। सैंपल्स, दैट मीन्स कितने लोगों से बात करना है, कितने लोगों का ऑब्जर्वेशन करना है। सो क्वालिटेटिव रिसर्च में स्मॉल सैंपल्स रहता है क्योंकि मेजरली वो इंटरप्रिटेशन बेस्ड रहता है, इन नेचुरल सेटिंग वो ऑब्जर्वेशन करता है। ऑब्वियसली क्वांटिटेटिव अगर आपको लेना है तो आपको नंबर ज़्यादा चाहिए, तो लार्ज सैंपल, सैंपल मतलब जिन लोगों को आप लोग इन्वॉल्व करने वाला, जिन चीज़ों को इन्वॉल्व करने हो उसका सैंपल ज़्यादा होना चाहिए टू प्रोड्यूस जनरलाइजेबल रिजल्ट। ओके, और कौन सा ज़्यादा यूज होता है, क्वालिटेटिव रिसर्च एक्सप्लोटरी रिसर्च डिजाइन सिचुएशन में ज़्यादा होता है, क्वांटिटेटिव रिसर्च डिस्क्रिप्टिव एंड कैजुअल रिसर्च डिजाइन में होता है। एक टॉपिक है जो जनरल अभी करंट सिचुएशन है, आप लोगों को पता रहेगा, दैट आई वांट टू डिस्कस विथ यू, सैंपल्स। सैंपल्स मतलब नंबर ऑफ पीपल वेरीफाइड और टेस्टेड रहता है। आप लोगों ने अभी वैक्सीन का डिबेट जो चल रहा है, आज से हमारा वैक्सीनेशन शुरू हो गया है, जब हमारा लेक्चर शुरू है तो शायद कुछ लोगों ने ऑलरेडी वैक्सीनेशन लिया रही है। अब यहाँ पे 2 कंपनी है इंडिया में जिसके बारे में डिस्कशन हो रहा है, करंट केस स्टडी लेते हैं, जिसमें है एस्ट्राजेनेका सीरम इंस्टीट्यूट का एंड सेकंड है कोवैक्सीन भारत बायोटेक का। यहाँ पे एक बात पे फिर थोड़ा आर्ग्यूमेंट या फिर डिस्कशन या डिबेट चल रहा है, दैट इज ऑल्सो ऑन नंबर ऑफ सैंपल्स। जो कोवैक्सीन को परमिशन मिला है, उनका जो सेकंड फेज ऑफ ट्रायल था जिसमें ऑलमोस्ट 1000 या 2000 लोगों पे ट्रायल होता है, उसके बेसिस पे और उनके रिजल्ट के बेसिस पे उनको परमिशन मिला है। एंड देन सेकंड, एस्ट्रोजेनिका का फेज 3 ट्रायल रहता है। फेज 3 ट्रायल में 20 to 30,000 पीपल पे एक्सपेरिमेंट किया जाता है या फिर सैम्पलिंग किया जाता है। तो इसका मतलब है 30,000 लोगों का सैंपल पे
किस तरीके से वैक्सीन अफेक्ट करता है, उसके बाद उन्होंने अपने पॉजिटिव या नेगेटिव रिजल्ट लगाए, और कोवैक्सीन का 1 और 2000। वाइल आई एम नॉट गिविंग यू एनी इनसाइट ऑफ दिस, वाइल कोवैक्सीन का थर्ड फेज ट्रायल अभी भी शुरू है, वो लोग भी 30,000 से ज्यादा लोगों पे सैंपल करेंगे, लेकिन सिचुएशन इन डेप्थ इन ग्रेव है। कोवैक्सीन के फेज 2 के ट्रायल के इवन दो देर इज अ लेस नंबर ऑफ सैंपल, रिजल्ट काफी पॉजिटिव थे। दैट्स वाई गवर्नमेंट ने उसको इमरजेंसी यूज के लिए अप्लाई कर दिया। फेज 2 को भी एज पर लॉ आप लोग अप्लाई कर सकते हो, लेकिन लार्जर द सैंपल बेटर द रिजल्ट, इसलिए कोवैक्सीन कोविशील्ड जो सीरम इंस्टीट्यूट का है वो अभी हम लोग मेजोरिटी में यूज कर रहे हैं। अगर आप गवर्नमेंट का स्ट्रेटेजी भी देखोगे तो कोवैक्सीन लेस नंबर में परचेस किया गया है और कोविशील्ड मेजोरिटी नंबर में परचेस किया गया है। दिस इज द रीजन, बिकॉज लार्जर सैंपल रहते तो रिजल्ट का परफेक्शन अच्छा रहता है। This is just a case study that I want to discuss. Let us get going on the next point. So एक्सप्लोरटरी रिजल्ट में दो एक रहते हैं कि उसमें कौन सी चीजें एक्सप्लोर रहेंगी, उसके रिजल्ट फिक्स नहीं रहते, कंफर्म नहीं रहते। तो दैट्स वाई टू टाइप्स ऑफ रिजल्ट है वहाँ पे, एक्सप्लोरटरी रिजल्ट, एक्सप्लोरटरी रिसर्च वर्सेस कन्फर्मेटरी रिसर्च। फिलोसॉफिकली रिसर्च कैन बी कंसिडर्ड आइदर एक्सप्लोरटरी और कन्फर्मेटरी, जिसमें रिजल्ट फाइनल आ रहे हैं वे ऑन द स्टैटिस्टिक बेस पे, वो कन्फर्मेटरी रहता है। मोस्ट एक्सप्लोरटरी रिसर्च डिजाइन प्रोड्यूस क्वालिटेटिव डेटा, सो एक्सप्लोरटरी क्वालिटेटिव में आता है। एक्सप्लोरेटरी डिजाइन डू नॉट यूज प्रोड्यूस क्वांटिटेटिव डेटा which represent the phenomenon by assigning the numbers in ordered meaningful way. Rather than in exploratory, rather than number, they focus on qualitative research is on stories, visual portrayals, meaningful characterization, interpretation of researcher and other expressive description. So, often exploratory research may be needed to develop ideas that lead to research hypothesis. उसके ऊपर से वो hypothesis देते हैं और फिर further study carry out करते हैं. In other words, some situation, in some situation, the outcome of exploratory research is testable research hypothesis. वो कुछ ना कुछ पॉजिटिव फाइंड करता है, फिर बाद में आप उस हाइपोथेसिस को टेस्ट कर सकते हो विथ क्वांटिटेटिव अप्रोच. Confirmatory research then tests these hypotheses with qualitative data, sorry, with quantitative data. The result of this test helps decision making by suggesting specific course of action. So अगर हम लोग इनको कॉन्ट्रास्ट कर रहे हैं तो फर्स्ट इट इज सजेस्टेड टू कंडक्ट एक्सप्लोरटरी रिसर्च, फिर उसके बेसिस पे टेस्टेबल रिसर्च हाइपोथेसिस तक पहुंच जाओ, और फिर जो टेस्टेबल हाइपोथेसिस रिसर्च रहेगा देन अडॉप्ट सेकंड अप्रोच कंफर्मेटरी रिसर्च टू in the quantitative way to finalize the result. Okay. For example, exploratory researcher is more likely to adopt qualitative approach that might involve trying to develop deeper understanding, factual understanding on the basis of interpretation, how families are impacted by changing economic condition. यहाँ पे तो नंबर्स पे आपको ये पता चलेगा कि कितनी फैमिली अफेक्ट हुई, लेकिन हाउ ये पता चलेगा सिर्फ एक्सप्लोरटरी रिसर्च से, हाउ नहीं पता चलेगा. Investigating how people suffering economically spend mere scarce of resources. So this may lead to the development of hypothesis that during challenging economic times, consumers seek low-cost entertainment such as movie rentals. They do not go to theaters, but would not test the hypothesis. In contrast, क्वांटिटेटिव रिसर्चर में सर्च फॉर द नंबर विच इंडिकेट द इकोनॉमिक ट्रेंड, कि लोगों ने अभी कितने लोग अभी ज्यादा परचेस कर रहे, कितने लोग नहीं कर रहे, कितने लोग मूवी में जा रहे, कितने लोग नहीं जा रहे. दिस में लीड टू हाइपोथेसिस टेस्ट कंसर्निंग हाउ मच द इकोनॉमिक इन्फ्लुएंसेस द रेंटल मूवी कंज्यूमशन. रेंटल मूवी मतलब क्या है, घर पे डीवीडी लाकर भाड़े से वो मूवी देखते हैं. तो अगर लोग थिएटर में जाते हैं मतलब इकोनॉमिक कंडीशन साउंड है, अगर वो घर पे मंगाते हैं तो इकोनॉमिक कंडीशन है, लेकिन वो हाउ इट इज इफेक्टिव दैट इज एक्सप्लोरटरी पार्ट. ओरिएंटेशन टू क्वालिटेटिव रिसर्च किस तरीके से करना है. क्वालिटेटिव रिसर्च कैन बी परफॉर्म इन मेनी वेज यूजिंग मेनी टेक्निक्स. ओरिएंटेशन टू क्वालिटेटिव रिसर्च are very much influenced by the different fields of study involved in the research. These orientations are each associated with the category of qualitative research. The major categories of qualitative research include phenomenology. What is that? It is originating in philosophy and psychology, combination of both. Ethnography. We are going to learn all four topics today. Originating in anthropology. Grounded theory, originating in sociology, and case studies, originating in psychology and in business research.
द प्रिसाइज लाइन बिटवीन दिस अप्रोच, ये दो चारों अप्रोच डिफरेंट है, फिर भी उनके बीच में एक लाइन ड्रॉ करना या स्पेसिफिक उन लोगों को क्लियर डिफरेंशिएट करना थोड़ा मुश्किल है। मतलब कभी कभी वो कंबाइन हो जाती है, वो वेरी थिन लाइन है, डिफरेंट तो है ही, अप्रोच डिफरेंट है। In addition, a particular qualitative research study may involve elements or two or more approaches. कभी कभी दोनों दोनों अप्रोच ले सकते हैं। Let us learn them in brief. What is phenomenology? So, this approach for research is what? So, phenomenology represents philosophical approach to studying human experience based on the idea that human experience itself inherently subjective and determined by the context in which people live. किस तरीके के एक्सपीरियंस वो खुद के ह्यूमन लाइफ पे करते हैं, वो उस कंटेक्स्ट में हम लोगों को यहाँ पे फिलोसॉफिकली उसके बारे में सोचना है। द फिनोमेनोलॉजी रिसर्चर फोकसेस ऑन हाउ पर्सन्स बिहेवियर इज शेप्ड बाय द रिलेशनशिप ही और शी हैज विद फिजिकल एनवायरनमेंट, ऑब्जेक्ट्स, पीपल, सिचुएशंस। Phenomenological inquiry seeks to describe, reflect upon, and interpret the experience. Obviously, यहाँ पे रिसर्चर मेजर रोल इंपॉर्टेंट करेगा, बिकॉज उसको इंटरप्रेट करना है किस तरीके से उनके रिफ्लेक्शंस होते हैं। The researcher with phenomenological orientation really rely on largely on conversational interview tools. वो लोगों से बातें करते हैं, वो इंटरव्यू करते हैं। When conversational interview are face to face, they are recorded either with video or audio tape, then interpreted by the researcher. अब इस रिसर्च में काफी सारी चीजें जो आगे भी आएगी, काफी डिटेल में और डेप्थ में है। हम लोगों का इंटरव्यू लेते हैं फिनोमेनोलॉजी में, इतनी बात आपने पढ़ी। जब हम लोग रिकॉर्ड करते हैं तो उसके आंसर्स आपके मन में ये होगा कि वो इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछेगा और सामने वाला बंदा उसके आंसर देगा, फिर हम लोग पढ़ेंगे और अपना इंटरप्रिटेशन निकालेंगे एज ए रिसर्चर। क्या इतनी ही चीज होती है? नहीं। उस चीज में उसका वर्बल कम्युनिकेशन, उसका साउंड, वो जो बात कर रहा है वो किस बात पे एम्फसिस कर रहा है, ओके, कौन से वर्ड पे वो ज्यादा स्ट्रेस दे रहा है, कौन से वर्ड्स पे वो कम स्ट्रेस दे रहा है, तो उसका जो टोन है, जो ऑडियो है, उसका जो आवाज है, उसके जो वेरिएशन है, वो भी ऑब्जर्वेशन का पार्ट बनते हैं टू अंडरस्टैंड हिज साइकोलॉजी। सेकंड पार्ट, अगर वीडियो रिकॉर्डिंग होती है तो उसके फेशियल एक्सप्रेशन वाइल गिविंग आंसर टू सम क्वेश्चन, वो भी रिसर्चर के ऑब्जर्वेशन का पॉइंट रहता है। फेशियल एक्सप्रेशन, वो कह कुछ रहा है और एक्सप्रेशन कुछ कह रहे हैं, ऐसा भी होता है। सो दिस इज नॉट अ डिफिकल्ट थिंग, बट दीज आर द डिटेल्स दैट आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू कि किस तरीके से होता है। द phenomenological interviewer is careful to avoid asking direct question when it is possible, because it might be offend to इंटरव्यू, जो पर्सन इंटरव्यू दे रहा है उसको ऑफेंड कर सकता है। Instead, the research respondent asked to tell a story about some experience. वो जनरली अपने बारे में एक छोटा सा स्टोरी शुरू करते हैं बताना, और फिर धीरे धीरे ऑन गोइंग वो उनसे इंफॉर्मेशन लेता है। In addition, the researcher must do everything possible to make sure that the respondent जो इंटरव्यू दे रहा है must be comfortable telling his or her story. One way to accomplish is to become a member of group. आप किसी ग्रुप में एक मेंबर बनो। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, बिकमिंग अ स्केट बोर्डर इन सिनेरियो डिस्क्राइब, मतलब एक स्केट बोर्डिंग का जो केस स्टडी है, उसमें अगर आपको करना है तो आपको खुद से स्केट बोर्ड पहन के उनके बीच में जाना पड़ेगा, ताकि वो ओपन एनवायरनमेंट में, स्ट्रेसलेस एनवायरनमेंट में अपने व्यूज रखे आपके सामने। अनदर वे मे बी अवॉइड हैविंग द person use his or her real name while he is going to be on record, उसका आइडेंटिटी हम लोगों को रिवील नहीं करना चाहिए। दिस माइट बी पर्टिकुलरली नेसेसरी इन स्टडिंग पोटेंशियली सेंसिटिव टॉपिक्स सच एज स्मोकिंग, ड्रग यूजेस, शॉपलिफ्टिंग, दुकान से जो चोरी करते हैं, एम्प्लॉय थेफ्ट, उसके बारे में जब लोग अपने व्यूज देते हैं, वो खुद करते हैं ऐसा नहीं है, बट खुद भी करते रहे या नहीं भी तो भी उनके नाम वहाँ पे नहीं आने चाहिए, तभी वो क्लियरली देंगे। Therefore, this is a psychological part, okay, philosophical part. Therefore, phenomenological approach to studying the meaning of vans जो skateboarding के outside उस ground पे रहते हैं, may require considerable time, time तो लगेगा,
तो आपको उनके बीच में जाना पड़ेगा, उनके जैसे बनना पड़ेगा, ग्रुप का मेंबर बनना पड़ेगा. ड्यूरिंग दिस टाइम the researcher has to prepare the notes of conversation carefully. Next is what is hermeneutics. So hermeneutics is important phenomenology. ये type है phenomenology में का. It is the approach to understand phenomenology that relies on analysis of text in which person tells the story about him or herself. So अभी आपने फेनोमेनोलॉजी पढ़ा तो लोगों को से हम बात करते, फिर हम लोग लिख लेते हैं उसका फाइंडिंग्स, नोट्स बना लेते हैं, फिर उसके अंदर से वो नोट्स पे से जो हम लोग अपने फाइंडिंग्स निकालते हैं, वो जो टैक्टिस है उसे कहते हैं हर्मेनेटिक्स. ओके. द मीनिंग देन ड्रॉन बाय कनेक्टिंग द टेक्स्ट पैसेज टू वन अनदर. जो भी टेक्स्ट है वो जो हम लोगों ने उनसे बात की एक दूसरे से, उस टेक्स्ट का जो भी हमने नोट बनाए हैं ऑब्वियसली उन्होंने बोला है और हम लोग को नोट्स में, डॉक्यूमेंट्स में उसको कन्वर्ट करेंगे, उनका रिलेशन करना है किस तरीके से डिपेंडेंट है, और टू बी थीम्स expressed outside the story. These connections are usually facilitated by coding the key meaning expressed in the story. While a full understanding of hermeneutics is beyond the scope of this text, इस बुक के स्कोप के अलावा है, फिर भी कुछ टर्मिनोलॉजी हम लोग क्वालिटेटिव रिसर्च में कैसे यूज करते हैं वो हम लोग पढ़ेंगे. फॉर इंस्टेंस हर्मेनेटिक ये सेपरेट सब्जेक्ट भी हो सकता है, सेपरेट टॉपिक भी हो सकता है, सेपरेट चैप्टर या यूनिट होगा कि किस तरीके से जो टेक्स्ट लिखा गया है उसको अंडरस्टैंड या इंटरप्रेट करना है साइंटिफिकली. दैट इज कॉल्ड एज hermeneutics. This, for instance, hermeneutic unit refers to a text passage from respondent story that is linked with key theme from within the story provided by the researcher. The passage is then important way in which data are interpreted. जो भी पैराग्राफ्स रहेगा फिर वो एक इम्पोर्टेंट मीनिंग बन जाएगा, मीन्स बन जाएगा जिसपे से हम लोग डेटा इंटरप्रेट करेंगे. इसके लिए कंप्यूटराइज सॉफ्टवेयर भी हैं. कंप्यूटराइज सॉफ्टवेयर आर एग्जिस्ट इन असिस्ट इन कोडिंग एंड इंटरप्रेटिंग टेक्स्ट इमेजेस. टेक्स्ट एंड इमेजेस, इमेजेस में से भी लोग फेशियल एक्सप्रेशन को भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं. इस तरीके का एआई अभी अवेलेबल है. देर इज वन टूल दिया है atlas.ti. Atlas.ti is one of such software package that adopt the term hermeneutics unit in referring the group of phrases that are linked with the meaning. आप उसको टेक्स्ट प्रोवाइड करो, वो उसका इंटरप्रिटेशन देगा. hermeneutic unit are computerized and computerized software जो टेक्स्ट आप लोग दोगे आर ऑल्सो अप्रोप्रिएट. मतलब यहाँ पे hermeneutics यूनिट का क्या पार्ट हो गया, पहले तो आप लोगों उनको फेनोमेनोलॉजिकली ऑब्जर्व करोगे, टेक्सचुअली वो लिख कर रखोगे नोट्स, फिर उसमें से हर्मेनेटिक्स यूनिट रखोगे, मतलब अनरिलेटेड टेक्स्ट है जो हटा दोगे, जो अनइम्पॉर्टेंट टेक्स्ट है वो हटा दोगे, तो वो बन गया आपका हर्मेनेटिक्स का यूनिट, और फिर आप उसको सॉफ्टवेयर में दोगे. ओके. वन यूजफुल कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटराइज अप्रोच इज वर्ड काउंटर. कितने नंबर, वो कितना खुल के बोला. द वर्ड काउंटर विल रिटर्न द काउंट्स ऑफ हाउ मेनी टाइम्स, कुछ वर्ड उसने कितने बार रिपीट बोले, often frequently occurred words. okay, the research. okay, ये जो हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे यही डेमोस्ट्रेट किया गया कि hermeneutics किस तरीके से इंटरप्रिटेशन में हेल्प करता है. और ज़्यादा भी आएगा तो कंज्यूमर शॉपिंग का कार रहता है उसमें भी करता है. लेट अस कम टू अवर सेकंड टाइप, इथनोग्राफी. एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में सेकंड टाइप इथनोग्राफी. so what is ethnography? Ethnography represent the way of studying culture through methods that involve becoming highly active within that culture. Just complete this one. Participant observation typifies the ethnographic research approach. पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन मतलब ग्रुप ऑफ पीपल एक जगह पे बैठे हैं और वो डिस्कस कर रहे हैं और आप लोग उनको ऑब्जर्व कर रहे हैं. पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन मीन्स रिसर्चर बिकम इमर्स विद इन द कल्चर दैट ही और शी स्टडिंग एंड ड्रॉज द डेटा फ्रॉम हिज और हर ऑब्जर्वेशन. The culture can be either broad culture like American culture, narrow culture like urban gangs, Harley Davidson owner. ग्रुप बनाएंगे हम किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे, स्केटबोर्डिंग इंथुजियास्टिक, तो ये कल्चर होगा, मतलब ये टाइप होगा, उनका ग्रुप होगा. सो उनको ऑब्जर्व करने का पार्ट है इथनोग्राफी. एक एक से मिलने के बजाय ग्रुप को. ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर वुड ऑल्सो बी रिलेवेंट फॉर इथनोग्राफी स्टडी. At times, researchers have actually become employee of an organization for extended period of time. क्योंकि उसको ज़्यादा टाइम लगता है तो रिसर्चर ऑलमोस्ट सारे लोगों से फेमिलियर रहता है और वो ऑर्गेनाइजेशन का एक पार्ट बन जाता है.
अगर ऐसा हुआ, इन डूइंग सो दे बिकम अ पार्ट ऑफ कल्चर, तो उनके कल्चर का पार्ट में रहते हैं, एंड ओवर द टाइम एम्प्लॉयज कैन एक्ट नेचुरली अराउंड द रिसर्चर। तो बात यहाँ पे ये क्लियर गई है कि इथोनोग्राफी, वो लोगों को ऑब्जर्व करना है तो उसको उनके साथ में काम करना पड़ेगा, उनमें मिक्स होना पड़ेगा। जस्ट डिफरेंस ये है पुराने अप्रोच से जो हम लोगों ने अभी पढ़ा फिनोमेनोलॉजिकल में। तो आप इंडिविजुअल लोगों को ऑब्जर्व करके उनका इंटरव्यू लेते हो, यहाँ पे ग्रुप का कर रहे हैं, उनका पार्ट बन के, ना कि अचानक से जाकर। सो वो अगर आप उनका पार्ट बन के ज्यादा टाइम उनके साथ स्पेंड करते हो तो खुल के बात करते हैं, ओपनली बात करते हैं। द रिसर्चर में ऑब्जर्व बिहेवियर दैट एम्प्लॉय वुड नेवर रिवील अदरवाइज, बिकॉज उसके बीच में का एक बन जाता है। फॉर इंस्टेंस, researcher investigating the ethical behavior of salesperson may have difficulty getting a car salesperson to reveal any potential deceptive sales tactics in the traditional interview। अगर आप उसको डायरेक्टली अगर आप बात करोगे उस सेल्स पर्सन से कि आपकी आइडियाज क्या है, आप कैसे ज्यादा कार सेल करते हो, तो कभी भी रिवील नहीं करेगा। हाँ, लेकिन आप उसी कंपनी के पार्ट बनते हो और उसको ऑब्जर्व करते हो तो अपने आप आपको उसकी आइडियाज पता चलेंगी। इनफॉर्मल कन्वर्सेशन के थ्रू आपको ज्यादा पता चलेंगी देन फॉर्मल कन्वर्सेशन। हाउएवर, इथोनोग्राफिक टेक्निक में रिजल्ट इन सेल्स पर्सन लेटिंग डाउन हिज और ओन गार्ड, वो बता सकता है या नहीं बता सकता है, रिजल्टिंग इन मोर वैलिड डिस्कवरीज अबाउट द कार सेलिंग कल्चर, वो आपको एक्सपेक्टेशन से ज्यादा भी बता सकता है बाय ऑब्जर्वेशन इन नॉन फॉर्मल कन्वर्सेशन। इथोनोग्राफी में ऑब्जर्वेशन कैसे करना चाहिए उसके भी कुछ रूल्स बताए गए हैं। ऑब्जर्वेशन प्लेज ए की रोल इन इथोनोग्राफी। ग्रुप ऑब्जर्वेशन रहता है या फिर पर्सन ऑब्जर्वेशन रहता है, डायरेक्टली उससे बात नहीं होती है, कभी कभी रेयरली होती है। रिसर्चर टुडे समटाइम्स आस्क हाउस होल्ड्स फॉर परमिशन टू प्लेस वीडियो कैमराज इन देयर होम। सो इन डूइंग सो इथोनोग्राफर कैन स्टडी द कंज्यूमर इन नेचुरल हैबिटेट, ताकि वो अपने जो उनके घर के अंदर जो प्रोडक्ट्स हैं वो किस तरीके से यूज करते हैं, उनका किस तरीके से अप्रोच है, किस तरीके से उसको पोलाइटली हैंडल करते हैं या रफ यूज करते हैं, ये अगर आपको पता करना है। आप उनसे पूछेंगे तो वो कभी भी नहीं बताएगा, लेकिन अगर आप उनको ऑब्जर्व करते हैं तो पता चलेगा। तो यूज द ऑब्जर्वेशन, दिस कैमराज विल it will be the cameras will use the observations to test the new product, develop a new product ideas, and develop the strategies in general. However, इन इंडियन कंटेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे तो अपने घर में कैमरा लगाने का कोई भी परमिशन देना बहुत ही डिफिकल्ट है। हाँ, तो फिर आपको उनको पेमेंट देकर वो ऑब्जर्वेशन करवाना पड़ेगा। सो दीज आर द फर्दर थिंग्स दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस कि कैसे लोग मानेंगे। ओके, ऑब्वियसली वो कैमराज आप उनके किचन में ही रखोगे, उनका जो प्राइवेट एरियाज है उसमें तो नहीं रखने वाले, बट उनका कंसेंट तो जरूरी है। ये और भी डिस्कशन हम इस बारे में करेंगे, बट नेचुरल हैबिटेट में ऑब्जर्वेशन रहता है। Next, ethnography study can be particularly useful when certain culture is comprised। ऊपर का इसमें एक बता देता हूँ, अगर घर के सारे लोगों को पता है कि कैमरा लगा है तो उनका हैबिट कभी भी नेचुरल नहीं रहेगा। दे विल बी कैमरा कॉन्शियस, और उनका जो नेचुरल वे ऑफ हैंडलिंग द प्रोडक्ट है वो कभी भी सामने नहीं आएगा। बट अगर वो 10 दिन के लिए कैमरा रहता है तो वो पहले दिन बॉदर करेंगे, दूसरे दिन बॉदर करेंगे, तीसरे दिन बॉदर करेंगे, लेकिन कुछ दिनों के बाद वो कैमरा को बॉदर करना छोड़ देंगे, तब नेचुरल हैबिटेट ऑब्जर्व होगा। Ethnography study can be particularly useful when certain culture is comprised of individuals who cannot or will not verbalize their thoughts and feelings। जो बोल नहीं सकते हैं, मतलब उनको बोलने नहीं आता ऐसे नहीं है, but they don't want to speak उनके thoughts, उनकी feelings, they don't want to explore, उनके लिए observation technique ज़्यादा suitable है। For instance, ethnography has advantages for discovering insight among the children। Children तो बोल ही नहीं पाते, वो they cannot express। So उनके आवाज से, उनके एक्सप्रेशन से, उनके बिहेवियर से हम लोग कुछ चीजें कर सकते हैं। Researcher can simply become a part of environment, allow the children whatever do he want, he has to just record the behavior, observe the behavior। So कुछ हम लोगों ने यहाँ पे केस स्टडी की थी। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वर टू लर्न अबाउट स्केटबोर्डिंग का एक केस स्टडी किया था। दैट कल्चर रिप्रेजेंट इथोनोग्राफिक अप्रोच। लोग वहां पे जाते हैं और ग्रुप बिहेवियर स्टडी करते हैं। थर्ड type of exploratory research is grounded theory। So first we will understand what is it। Grounded theories probably applies less often in business research than it is either phenomenology or ethnography। मतलब जितना ज्यादा फिनोमेनोलॉजी इथनोग्राफी का यूज होता है उतना ग्राउंडेड थ्योरी का नहीं होता है, फिर भी वो इंपॉर्टेंट है। ग्राउंडेड थ्योरी रिप्रेजेंट इंडक्टिव इन्वेस्टिगेशन।
in which researcher pose a question about information provided by the respondent, जो ऑलरेडी उसको आंसर्स मिले रहते उसके बारे में वो और क्वेश्चन पूछता है, और टेकन फ्रॉम द हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स. द रिसर्चर आस्क दिस क्वेश्चन टू हिम, खुद को ओके पूछता है, एंड रिपीटेडली क्वेश्चंस द रिस्पॉन्सेज टू ड्राइव डीपर एक्सप्लेनेशन. अगर किसी ने कोई आंसर दिया है तो वो खुद को क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज द इंटेंशन ऑफ गिविंग दिस काइंड ऑफ आंसर. Grounded theory is particularly applicable in highly dynamic situation involving rapid and significant change, जहाँ पे changes जल्दी में होते हैं. Two key questions are asked by the grounded theory researcher are: what is happening here, how it is different, why the two participants have given different approach on same thing in same environment. The distinguished characteristic of grounded theory that it does not begin with the theory but instead extract one from whatever emerged from the area of inquiry. ऑलरेडी क्वेश्चनरीज पूछे रहती है और उसी पे वो आगे का अपना खुद को क्वेश्चन पूछ के आगे का रिसर्च कैरी आउट करता है, मोर ग्राउंडेड में आता है. तो पहले थ्योरी एस्टेब्लिश नहीं होती है, पहले क्वेश्चंस रहते हैं, इंक्वायरीज रहती है और फिर थ्योरी एस्टेब्लिश होती है. कैसे यूज होता है ग्राउंडेड थ्योरी? Consider a company that approaches a researchers to study whether or not its sales force is effective. मतलब उनका सेल्स टीम अच्छा है या नहीं. ओके, 5 साल में वो आप लोगों को एक केस स्टडी यहाँ पे दिया है. अगर यहाँ पे ग्राउंडेड थ्योरी यूज करना है तो रिसर्चर यूजेस टू डिस्कवर इट टू अ पोटेंशियल एक्सप्लेनेशन कि क्या कैसे उनका अप्रोच रहा है 5 साल में. A theory is inductively developed based on the text analysis of dozens of sales meeting. सेल्स मीटिंग के जितने सारे रिपोर्ट रहेंगे उसका सब वो ऑब्जर्वेशन करेंगे और जो रिकॉर्ड किए उनको वो लर्न करेगा, ऑब्जर्व करेगा, और फिर उसके ऊपर वो क्वेश्चन पूछेगा खुद को पहला, बाय क्वेश्चनिंग द इवेंट डिस्कस इन द सेल्स इंटरव्यू एंड एनालाइजिंग द डिफरेंस इन द सिचुएशन दैट मे हैव लीड टू द डिस्कशन. द रिसर्चर इज एबल टू डेवलप अ थ्योरी. वो खुद को क्वेश्चन पूछेगा कि इस मीटिंग में इस तरीके से क्यों हुआ था, क्या हुआ था, और वो अपनी अपनी फाइंडिंग निकाल के एक इंडक्टिव डेवलपमेंट करेगा जिससे वो एक इंडक्टिव थ्योरी बना सके. दैट थ्योरी विल सजेस्ट दैट with an increasing reliance on email and other technological device for communication, the salesperson do not communicate with each other informally as much as they did in 5 years previously. जो अभी करंट सिचुएशन है वो एक दूसरे से बात नहीं करते बिकॉज टेक्नोलॉजी आ गया तो मैसेजेस करके अपना काम खत्म करते, बट पहले वो लोग एक साथ आते थे, मीटिंग करते थे और एक दूसरे से अच्छा बात कर सकते. एज अ रिजल्ट सेल्स पर्सन हैज फेल्ड टू बॉन्ड इनटू क्लोज नीट कम्युनिटी. तो ये डिडक्टिव इंडक्टिव थ्योरी है जो यहाँ पे आपको लिख कर बताया गया, लेकिन ये कब उसको पता चलेगा जब वो ऑब्जर्व करेगा 5 साल के डेटा को. हियर ऑल्सो इन ग्राउंडेड थ्योरी कंप्यूटराइज सॉफ्टवेयर विल बी यूजफुल इन डेवलपिंग ग्राउंडेड थ्योरी. जैसे वो स्केटबोर्डिंग और स्केटबोर्डिंग के आउटसाइड वैन जरूरी है या नहीं, वहाँ के एग्जाम्पल में रिसर्चर में इंटरप्रेट स्केटबोर्डर स्टोरीज गुड एंड बैड स्केटिंग एक्सपीरियंस बाय क्वेश्चनिंग द इवेंट चेंजेस डिस्क्राइब. This may yield theories about the role that certain brands in play in shaping good or bad experience. Theories भी ऐसे आ सकता है कि कुछ पर्टिकुलर ब्रांड उन्होंने यूज किए उसकी वजह से उनका उस पर्टिकुलर स्केटबोर्डिंग पे ही गुड और बैड एक्सपीरियंस है. Alternatively, grounded theories often rely on visual representation. Thus, skateboarder could develop a collage representing good and bad experience. Question can be applied to these visuals in an effort to develop a theory. सो पहले मैं आप लोगों को शायद इतना बार रिपीटेड एक केस स्टडी हुआ है स्केट बोर्डर्स का एंड वैन्स का, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या है. कि जहाँ पे भी स्केट बोर्डिंग का जो स्नो वाला ग्राउंड रहेगा या एरिया रहेगा उसके आउटसाइड वैन्स रहती हैं. वो वैन्स इसलिए रहती है कि कभी अगर किसी को ठंडी लगे, ज़्यादा फील हो जाए, कोल्ड लगे, तो वैन में वो जा सकते हैं. प्लस वो अपने स्केटबोर्ड का मल्टीपल स्केटबोर्ड वहाँ पे ला सकते हैं, अगर कोई टूट गया तो वो अपने वैन में रख सकते हैं. तो इट इज़ अ सिक्योर मैकेनिज्म. लेकिन ये प्रॉब्लम अमेरिका में ये इस इश्यू पे सर्वे डिस्कशन या रिसर्च हुआ था कि बहुत सारी जगह पे बिकॉज ऑफ स्नो इज देयर, तो वहाँ पे वैन्स को पार्किंग को जगह नहीं रहती या फिर बहुत सारे लोग अलाउ नहीं करते बिकॉज कम्यूटिंग को प्रॉब्लम होता है. दिस दिस इज द रियल रिसर्च क्वेश्चन जो यहाँ पे केस स्टडी यूज किया गया है. द एक्सप्लोरेटरी रिसर्च का फोर्थ एंड लास्ट पार्ट, केस स्टडीज. सो नाउ हम लोगों ने अभी एक केस स्टडीज के बारे में बात किया है, लेकिन फर्स्ट वी विल लर्न अकॉर्डिंग टू दिस बुक.
मैंने बहुत बार आपको बोला है कि आपका जो रेफरेंस बुक है आप सिर्फ उसको पढ़ लो अच्छे से, रोज एक एक चैप्टर पढ़ो, दो दो चैप्टर पढ़ो। काफी ब्यूटीफुल लैंग्वेज में, अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में, इजी लैंग्वेज में लिखा गया बुक। आप लोग, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैक्सिमम आई एम जस्ट रीडिंग द कंटेंट ऑफ द बुक एंड ट्राइंग टू गिव explanation in either Hindi or supporting that explanation with the example. Okay, so let us start with case studies. What are case studies? Case studies simply referred to the documented history of particular person, group और organization और event. कुछ चीज हो चुका है जो डॉक्यूमेंट किया है, उसके बारे में हम लोग फर्दर डिस्कशन करते हैं। टिपिकली केस स्टडी में डिस्क्राइब इवेंट ऑफ स्पेसिफिक कंपनी as it faces the important decision or situation such as introducing new product or dealing with some management crisis. पुराने समय में कुछ डिसीजन की वजह से कुछ क्राइसिस हुआ था, या फिर नया प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए उन लोगों ने करने के बाद क्या इश्यू हुआ था, इस तरीके के केस स्टडीज रहते हैं हिस्टोरिकल जो पहले से हो चुके हैं। टेक्स्ट बुक्स केसेस दैट मीन्स केस स्टडीज टाइपिफाई दिस काइंड ऑफ केस स्टडी। क्लिनिकल इंटरव्यूज ऑफ मैनेजर, मैनेजर के साथ जो इंटरव्यू था उनका, आपको एक्स वाई जेड, जैसे हम लोगों ने डेविड एंड जेम्स का देखा, वो केस स्टडी है कि उनके बातों में से हमको आगे इंटरप्रिटेशन करना है। एम्प्लॉयज, मैनेजर एंड कस्टमर्स कैन बी टेकन इनटू केस स्टडीज। केस स्टडीज देन कैन बी एनालाइज फॉर इंपॉर्टेंट थीम्स। उसी कम्युनिकेशन, उसी ऑब्जर्वेशन, उसी टेक्स्ट में से हम लोग हमारे रिसर्च का थीम डिराइव करेंगे। These themes are identified by the frequency with which the same term arises in narrative description. The themes may be useful in discovering variables that are relevant to potential explanation. How are case studies used? Case studies are commonly applied in business. For instance, case studies of brands that all sells product. A primary advantage of case study is that the entire organization or entity can be investigated in depth with meticulous attention in detail, because पहले तो चीज़ें पास्ट में हुई हैं, उसका सारा मटेरियल हमारे पास है, तो इसलिए ये पॉसिबल है कि हम लोग उसको एंटायरटी में डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। This highly focused attention enables the researcher to carefully study the order of events they may occur, because already occurred हो गया तो उनका सीक्वेंस, एक दूसरे पे डिपेंडेंसी, किस वजह से दूसरा इवेंट ऑकर हुआ है, या फिर टू कॉन्सेंट्रेट ऑन आइडेंटिफाइंग द रिलेशनशिप अमंग द फंक्शंस, इंडिविजुअल एंड एंटिटीज, that is really possible with the case study. It is a very helpful tool. Conducting a case study often requires the cooperation of the party whose history being studied. So obviously उन्हीं पे हम लोगों को रिसर्च रखना है, so हम लोग वहाँ पे केस स्टडीज कर सकते हैं। Okay, so we will stop here. In next lecture we will start with common techniques used in क्वालिटेटिव रिसर्च। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज अ फोकस ग्रुप इंटरव्यू, बहुत सारी टेक्निक्स बताए जाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, आई एम स्टॉपिंग हियर फॉर द डे।